Student, now the next topic is the sun. So the sun is a huge ball of burning gases which act as which act as the center of the solar system, and it provides the gravitational pull that binds the complete solar system together. Okay, and it is the only and ultimate source of light and heat for the entire solar system. It is the closest star of the galaxy from the earth. And it is situated 150 million kilometer from the earth. Okay students, clear? Clear students? So sun जो है is a huge ball of burning gases, okay, act as the center of the solar system, and it is situated 150 million kilometer from the earth. Now the next is planets. So our planets, actually planets क्या है कि our solar system comprises 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, and students, an easy to way to memorize the name of the planet in order to their distance from the sun is, my very efficient mother just served us nuts, or you can say noodles. ओके कि आपके लिए बहुत इजी होगा लर्न करना इनको, क्योंकि एक ऑर्डर में आपको लर्न करना है. सो उसके लिए आप एक लाइन याद करेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स. माई माई में क्या लेना है आपको, माई एम, एम फॉर मरकरी, वी फॉर विनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर Saturn, okay, and U for Uranus, and N for Neptune. Okay, clear students? So they move around the sun in a fixed path called orbit. You can see in this picture, this is the sun, okay, and Mercury is the closest planet. Then after that, Venus, then Earth, and after that Mars, then Jupiter, after that Saturn, then Uranus and Neptune. Okay, so Neptune. So eight planets are here. Okay, and one star, that is sun. Okay, so ये सब क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी ये सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं और एक फिक्स पाथ में ये घूम रहे हैं. ठीक है, जैसे ये अपनी इसी ऑर्बिट के ऊपर देखिए, जिस जिस पाथ के ऊपर, जिस वे के ऊपर ये अपने अपने पाथ के ऊपर घूमते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. ओके, ऑर्बिट कहते हैं. सो दे मूव अराउंड द सन इज फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. And Mercury is the first planet. Mercury is the first planet in terms of the closest distance from the sun and takes only 88 days to complete one revolution. ये कितना टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन में, 88 days. Okay, and Venus is considered the twin planet of the Earth. Venus को क्या करते हैं हम लोग, जो वीनस जो है उसको ट्विन प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज इन शेप एंड साइज. क्योंकि वीनस का जो शेप एंड साइज है, ये जो वीनस है आपका, इसका और ये अर्थ, वीनस और अर्थ का शेप एंड साइज सेम होता है, इसीलिए हम इसे किस नाम से बोलते हैं, अर्थ ट्विन. ओके, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन्स. ओके, now the next is until August 2006, even Pluto was considered a planet. In the meeting of the International Astronomical Union, Pluto was considered as a dwarf planet like the series 2003 UB313.
ओके कि प्लूटो को एक और प्लैनेट जो है उसको डिस्कवर किया गया है, दैट इज प्लूटो। प्लूटो को कहा गया है कि प्लैनेट है, लेकिन अभी तक उसकी थोड़ी क्लैरिटी नहीं हुई है, तो इसको ना ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, उसे प्लैनेट नहीं ड्वार्फ प्लैनेट की तरह उसको बोला गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन, ठीक है। ये देखिए आप, फर्स्ट इज मर्करी, सेकंड इज वीनस एंड थर्ड इज अर्थ। ओके, so the earth is the third nearest planet to the sun, and earth is the third planet of the solar system in terms of the distance from the sun, and it is also the fifth largest planet in terms of size। और अगर हम साइज के हिसाब से देखें, साइज के हिसाब से ये कौन सा है, हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, अगर हम किसके साथ किसके उससे देख रहे हैं, थर्ड डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं सन से, तो ये थर्ड प्लैनेट है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, बट साइज के टर्म में देखें, सो इट इज ऑल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन टर्म ऑफ साइज। सो अर्थ इज जियोइड इन शेप, earth is geoid in shape, yes, you can see in this picture, in this picture this is the geoid shape। okay, geoid shape, that is it is slightly flattened at the poles। ऐसे ये जो पोल है ना, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ये ऐसे फ्लैटेंड होता है। हमें देखने में क्या होता है, जब हम ग्लोब देखते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल गोल है, ठीक है, राउंड शेप में है, बट ये राउंड शेप में नहीं होता, ये शेप क्या होती है, जियोइड शेप होती है, and it is slightly flattened at the poles। So Earth is only planet in the solar system which has means for supporting life, and it has the optimum temperature for life, air for breathing, water, etc. And all of this support life. So it has life supporting gas, oxygen. 2/3 of the Earth's surface covered by the water. Actually, students, कि from the outer space the earth appears the blue, how या और why, ठीक है, कि आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ हमें कैसा नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है। why, actually 2/3 of the earth surface is covered by water which makes it appear blue from space, and hence it is called the blue planet। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ओके, now the next is the moon। Moon is a single satellite of the planet the earth। मून जो है वो हमारा क्या है, एक सिंगल प्लैनेट है, किसका, अर्थ का, क्योंकि अर्थ के चारों ओर केवल मून ही क्या करता है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो इसीलिए हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, और प्लैनेट के चारों तरफ जब मूव करता है दैट इज सैटेलाइट। सो मून अकेला जो है, जो अर्थ के चारों ओर मूव करता है, घूमता है, तो इसीलिए क्या है, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, और ये अर्थ के चारों ओर घूमती है। तो मून इज अ सिंगल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट द अर्थ। मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे दिस इज आवर अर्थ। ओके, सो लेट this diameter, earth diameter is 100। ओके, तो अगर इसका 100 का डायमीटर है, तो हम 100 किलोमीटर का डायमीटर है, तो मून का कितना होगा, मून का डायमीटर इसका 1/4, इट मीन्स की 1/4 मीन्स फोर्थ पार्ट, यानी 25 किलोमीटर का, ओके, डायमीटर होगा 1/4। okay, so 1/4 1/4 it means, so moon's diameter is 1/4 of that of the earth, and it is situated at the distance of 3,84,400 kilometer away from us, okay, from the earth। तो यहाँ से देखिए मून का जो है, मून यहाँ हमारे यहाँ से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर, जबकि जो हमारा हमने देखा था पीछे कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द फ्रॉम द मून, और हमने अगर अर्थ का देखिए तो वो कितना है, 15 मिलियन किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है मून और
सन मून और किसका, अर्थ का, सन का. So the moon moves around the earth is about 27. It takes exactly the same time to complete one spin. So it takes only 27 days. It takes only 27 days for one revolution around the earth as well as one rotation on its axis. It entire surface of moon, the entire surface of moon is not visible from the earth. Only one lunar face is visible. Actually जो moon होता है ना, जब वो अर्थ के साथ साथ इक्वली क्या करता है, स्पिन करता है. ठीक है, उसके साथ साथ स्पिन करता है एक साथ. जब वो एक साथ दोनों स्पिन करते हैं तो इसीलिए आपको मून का केवल एक एक ही फेस जो है ना, सेम फेस आपको हर टाइम सेम फेस आपको नजर आता है. ओके, ओनली वन lunar face is visible. So the moon doesn't hold favorable condition for life. क्योंकि हमें जो है, जो मतलब अगर हमें ऐसा ही है तो हम मून के ऊपर क्यों नहीं जाकर रह सकते, क्योंकि मून जो है, मून doesn't hold favorable condition for life. So the surface of moon has mountain, depression and plains. So they are responsible for casting a shadow on the earth surface. Okay, you can see in this picture. So आपको इस तरीके के, आप देखो कि रात को अगर आप मून देखोगे तो आपको इससे ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, शेडोज नजर आते हैं. तो ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या होते हैं, ये वहां पर मून पर क्या है, माउंटेन्स हैं. ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन, मतलब जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं हमारे मून में. तो इस वजह से उनकी जो शेडो, क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हमें सिर्फ उनका क्या नजर आता है, एक शेडो नजर आती है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्टिंग अ शेडो ऑन द अर्थ सरफेस. Okay, students. So now the time is over. So that's all for today. Have a good day.